that your notification is out and most of you students are applying the wrong strategy. And why am I saying this? Because अभी तक जितने बच्चों से मैं I have come across, all of them what they are doing now that 6 months are left, so they have made a strategy of learning each and every subject, right, with those standard books. So अगर आप 500 पन्नों की किताब हर एक सब्जेक्ट के लिए उठाओगे, so do you think it will be feasible for the coming examination on 29th of November? So आप लोगों को basically करना क्या है, you need to do a little bit of what, रिवर्स इंजीनियरिंग. क्या करनी है आपको? रिवर्स इंजीनियरिंग आप लोगों को करनी है. अब रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करोगे आप? सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप दैट 500 पेजेस बुक, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, आपको उठाने हैं आपके PYQs. PYQs ऑफ प्री एंड ऑफ मेंस. ठीक, प्री और मेंस दोनों के आप लोगों को क्या उठाने हैं? PYQs उठाने हैं. ठीक है. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इन PYQs से क्या निकालनी है? यू नीड टू टेक आउट द कोर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोर थीम्स आप लोग निकालोगे. ठीक है. आप लोग PYQs उठाओगे, उनको एनालाइज करोगे, and as soon as you analyze these PYQs, what you will find is that there are certain themes that are being repeated again and again in different examinations. ठीक है. बार बार वही सेम थीम्स जो हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिपीट हो रही है हमारे प्री और मेंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटी के अंदर अगर हम देखेंगे एक थीम दैट इज ऑफ गवर्नर, every year 1 or 2 questions are there from this particular topic. If you see last year's mains paper, इस गवर्नर के टॉपिक को उन्होंने करंट के एक इशू से रिलेट करके और आपको एग्जामिनेशन में पूछ दिया था. ठीक है. They related it with a current issue, they related with the concept of Indian federalism, and they asked about it directly, and also they mentioned the 2 articles 200 and 201, right? Yes or no? If you have seen the previous year paper of mains, you will definitely find that question. Okay, so these are certain themes that are being repeated again and again in your examination. And if you really want to fetch some good marks, then you need to analyze those PYQs and you need to reverse learn those PYQs. अपने static जो आपकी बुक्स हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें इन कोर थीम्स को आप अच्छे से पढ़ लो. That will be something that will fetch you good marks. Because यहाँ से क्वेश्चन बार बार जो है वो बन रहा है. एक क्वेश्चन आया था आपका ग्राम विकास अधिकारी. ठीक है. ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था एक साल. नेक्स्ट साल उसी के ऑप्शंस के अंदर से बस उन्होंने उल्टा करके उसको दोबारा से पूछ लिया. राइट. सो these are the things that you people need to catch from the PYQs. Okay. Or as soon as you will analyze these themes, you will pick up these themes, it will be really helpful for you. Okay. To identify what's important, what is not, also to answer things in a appropriate way. Right? समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? So this is something that you people need to follow. Take a week's time. एक हफ्ता लो, अपना पूरा एक हफ्ता लो. एक हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है? ज़्यादा नहीं, हम लोग पूरे 1990 में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे 2013 से लेकर 2024 तक के प्री और मेंस दोनों के पेपर्स उठाओ. अपने आप उठाओ, कहीं से लो मत. किसी का स्टैंडर्ड आंसर्स वाले मत लो, किसी के कुछ भी मत लो. जस्ट पिक अप द रॉ पेपर्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ RPSC or from RSOND's website. You can find papers.
टेक द पेपर योरसेल्फ, हर एक क्वेश्चन को देखो, हर एक क्वेश्चन को नीचे लिखो कि ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के कौन से टॉपिक का है, ठीक है। एंड देन मेक अ लिस्ट फ्रॉम ऑन योर ओन. You can take the use of any kind of in artificial intelligence tools as well in this particular process if you feel like, okay. But do this exercise once and you will be sorted for the entire cycle of 2026 RS examination. Are you getting my point? So do this one particular exercise and then after that start reading, okay. After that start studying and definitely make short notes. शॉर्ट नोट्स आपको कब बनाने हैं? द 2 रीडिंग्स ऑफ योर गिवन स्टैंडर्ड बुक, ओके. इन टॉपिक्स की आपने जब 2 रीडिंग लगा ली है ऑलरेडी एंड देन व्हेन यू आर ऑन योर 3rd रीडिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू मेक नोट्स. फर्स्ट रीडिंग में कोई भी बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा. फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, आप हर चीज़ उस नोट में डाल दोगे. नो, यू डू नॉट हैव टू डू दैट. You have to make your notes in your 3rd reading, okay. After you have understood the chapter, after you have second time read and conceptualized things, and in the 3rd reading you will definitely yourself find that क्या मेरे लिए important है और क्या मेरे लिए important नहीं है, ठीक. So with that I hope आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, that how you people need to follow, how you people need to actually study any subject for the upcoming examination. तो ये क्या होता है, हमें 1 महीने में ये करने में हम जब बैठते हैं ना पढ़ने के लिए तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है एक्चुअली, ओके. सो दिस इज द राइटेस्ट वे दैट यू कैन स्टडी फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, ओके. सो विद दैट वी एंड टुडेज सेशन. कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो आपके मन में, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वी कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर यू पीपल. प्लस इफ यू हैव एनी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स सो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा, उसके ऊपर आप लोग जाइए एंड यू फिल दैट गूगल फॉर्म फॉर फ्री एंड आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन जो है वो हमारे काउंसलर्स के साथ में मिल जाएगा. और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द नंबर दैट इज गिवन बिलो एंड यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन विद RS only, ठीक है. चलिए, सो विद दैट वी एंड टुडेज सेशन. वी tomorrow with a new topic with a new session. और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ मैं कवर करूँ तो definitely let me know in the comment section. Thank you so much and all the very best.